Welcome to my math class. Students, so far we have learned about different methods like substitution method of integration, and we have also studied about how we can integrate different type of special functions in exercise 7.3, and how we can use trigonometric identities also to integrate different functions. Now in last exercise also we have studied about the integration of rational functions. What are the rational functions in which can be written as in the form of this px divided by qx, where px and qx are two polynomials. Okay, that we have already done in exercise 7.3 also, and here also further we are going to discuss about this only, okay, how we can integrate different type of rational functions. लेकिन उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है. इन लास्ट एक्सरसाइज ऑल्सो आई वॉज टेलिंग कि व्हेन वी नीड टू चेक whether it is a proper rational function or improper rational function. What do I mean by proper rational function or improper rational function? Actually today I'm going to introduce you this integrating by partial fraction method, and this is applied in only rational functions. तो rational functions जो हैं आपके उसमें first of all we check whether the degree of the numerator, whatever the polynomial is here in the numerator, its degree is smaller than the degree of the polynomial which is in the denominator. If it is so, then it is called proper rational function. If it is so, अगर आपने देखा हाँ है, then we start its integration. फिर हम उसके लिए कोई method देखते हैं that we have done yesterday also and we will do today also by this method. अच्छा, अगर आपकी डिग्री, suppose degree you see कि degree of this function which is in the numerator, that is greater than this polynomial which is present there in the denominator. यानी कि numerator की degree denominator से बड़ी है, तो this is improper rational function it's called. अब अगर ऐसा होता है then what to do? Then in that case we divide the numerator by the denominator by long division method. हम पहले उसको long division method से डिवाइड करके, जैसे आपको पता है आप क्या करते हैं, आपका जो डिविडेंड होता है उसको कैसे लिखते थे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इस तरीके से करते थे. वी विल डू इट लाइक दिस. आई विल एक्सप्लेन यू लेटर व्हेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम. तो उसमें हम लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे एंड विल कन्वर्ट it into the proper rational function and then we will integrate. यानी improper अगर आपके पास rational function आ जाता है तो आप direct integration नहीं कर सकते. तो सबसे पहला step यही होगा कि आपको proper या improper है rational function वही check करना है. अच्छा, अगर rational function अभी तक so far whatever we have done, अभी तक अगर rational function कोई आया then हमारा क्या algorithm रहा है, हमारा thinking process का क्या कैसे रहा है कि हम इस question को कैसे लेंगे. Look here, suppose I have written this question like this. We are to integrate 2x plus 1 upon x square plus x minus 2. अगर इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक जो आपने पढ़ा है, अभी तक जो पढ़ा उसमें अगर आ जाता है then how to do this type of question? कैसे करते हैं हम इसको? सोचिए हम क्या करते हैं. सबसे पहला स्टेप तो यही कि आप पहले डिग्री चेक कर लीजिए. हाँ, येस, दिस इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, क्योंकि ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, ये पॉलिनोमियल जो यहाँ लिखे हैं. उसके बाद दूसरा स्टेप होता था कि आप पहले ये चेक कर लीजिए कहीं डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में तो नहीं प्रेजेंट. तो हम यहाँ देख रहे हैं यस डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव जो है डिनोमिनेटर का वो डायरेक्टली प्रेजेंट है आपके पास. तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते थे. अभी तक आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है या फिर स्पेशल मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जो लास्ट एक्सरसाइज 7.3 में पढ़ा है. तो ये हम कर सकते थे पुट डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू टी 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt करके हम इसको डायरेक्टली dt अपॉन टी करते और ये आता डायरेक्टली लॉग ऑफ t प्लस सी. टी की वैल्यू पुट कर देते. तो अभी तक के अकॉर्डिंगली हम क्या करते, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें पता था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर यानी कि हमने किया अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड. दूसरा
अगर आप इसी क्वेश्चन में अप्लाई करते, दूसरा मेथड क्या बनता, अगर सब्सटीट्यूशन ये मान लो यहाँ पर -1 है, ठीक है, अभी भी ये है तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल आपका न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में, उनमें अगर हम चेक करें तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेसर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन यहाँ पर वट एवर इज प्रेजेंट हेयर, दिस डिनोमिनेटर, दिस पॉलिनोमियल, इसका डेरिवेटिव दैट इज नॉट प्रेजेंट हेयर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x + 1 है, जबकि वहाँ पर 2x - 1 है। देन व्हाट टू डू, हाउ टू डू, दैट इज एक्सप्लेन टू यू इन योर एक्सरसाइज 7.3। उसमें हम क्या करते हैं कि ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, यही समझाया था मैंने कि ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अगर आपको दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं कि जो लीनियर फंक्शन है 2x - 1 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक 2x + 1 प्लस b करके आप a और b की वैल्यूज़ निकाल के, और कैसे करते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डन। अगर नहीं देखा तो आप इससे पहले वाला जो लेक्चर है मेरा 7.3 एक्सरसाइज का 7.4 एक्सरसाइज आपके 2 लेक्चर्स में है, वो आप पहले उसको देखिए, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर फैक्टर्स हमारे बनते हैं डिनोमिनेटर में, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू गेट प्रॉपर फैक्टर्स, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या प्रॉपर फैक्टर बन सकते हैं, देखिए हम क्या प्रॉपर फैक्टर बन सकते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में। तो हम एक बहुत ही आसान मेथड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप x², इसको अगर आप स्प्लिट करते हैं x² + 2x - x - 2, तो आपके पास क्या आ रहा है 2x - 1 x - 1 x + 2 प्रॉपर फैक्टर बन गए। अगर प्रॉपर फैक्टर बन गए तो हमें 7.4 एक्सरसाइज से भी आसान एक मेथड है जिसमें हम बाय यूजिंग दैट वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ रैशनल फंक्शंस, एंड दैट सिंपल मेथड इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड तभी पॉसिबल है, पहली बात डिग्री चेक करनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल्स हैं, यानी कि आप प्रॉपर रैशनल फंक्शन में लगा सकते हैं, पहली चीज़ ये चेक करनी है। दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है कि आपके डिनोमिनेटर में जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसके प्रॉपर फैक्टर्स बनने चाहिए, ओनली देन इट वुड बी पॉसिबल, ठीक है। अब आगे मैं और एक्सप्लेन करती हूँ कि इसके कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैंने डिफरेंट फॉर्म्स लिखे हैं आपके रैशनल फंक्शन के, अब हम उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच आई विल टेक एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लाइक दिस। ये देखो, पहले देयर आर 2 फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स हैं। व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज 2 यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा और ऊपर क्या है, लीनियर है, डिग्री 1 है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया एक तरीके से। तो इसमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, बट इन द डिनोमिनेटर लीनियर प्रॉपर फैक्टर्स आर पॉसिबल, यू कैन सी। If it is so, then we can write it in this form: a upon first proper factor plus b upon second proper factor. And look here, देखो अगर यहाँ पर ये लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट आएगा, एक डिग्री कम, ओके। यहाँ पर भी व्हाट इज दिस, लीनियर, तो ऊपर क्या आएगा आपके पास, ये कांस्टेंट आएगा। बट इफ इट इज, देखो यहाँ पर नॉन रिपीटेड, कोई फैक्टर रिपीट नहीं हुआ, बट इफ इट इज रिपीटेड, कोई रिपीट हो रहा है आपके पास फैक्टर, जैसे कि यहाँ पर ये देखो x - a होल स्क्वायर, तो 2 फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, x - a इंटू x - a। इफ इट इज सो देन हाउ टू राइट आउट, पहले ये चेक कर लीजिए द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ पर देखो डिग्री कितनी है 2, और यहाँ पर इसकी 2 इंटू 1, ये इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, मल्टीप्लाई करके डिग्री हो गई टोटल 3, तो 2 इज लेस देन 3, ओके। और नीचे प्रॉपर फैक्टर्स आर पॉसिबल, यू कैन सी प्रॉपर फैक्टर्स है यहाँ पर। अब लेकिन रिपीटेड है, ये फैक्टर रिपीटेड है, देन हाउ टू राइट आउट इन द सिंपल फॉर्म, a अपॉन x - a, पहले आप इसको x - a लिखिए, प्लस b अपॉन, डायरेक्टली नहीं लिखना इसको x - a का होल स्क्वायर, यू आर नॉट टू राइट इट डायरेक्टली, आप इसको लिखिए x a दैट इज अ कांस्टेंट अपॉन x - a plus b upon x minus a whole square, okay, then c upon the third factor, this is x minus b, take care of it,
अच्छा, अगर ये तो तब था जब आपके लीनियर फैक्टर थे, लीनियर फैक्टर, लेकिन अगर फैक्टर क्वाड्रेटिक होगा, जो आपके पास डिनोमिनेटर में ये प्रॉपर फैक्टर है उनमें से ये वाला फैक्टर आप देख रहे हैं, दिस इज क्वाड्रेटिक फैक्टर, देन व्हाट टू डू, हाउ टू डू। अब यहाँ पर ये हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा, क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो ऊपर जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी लीनियर एक्सप्रेशन। देखो जब लीनियर था तो ऊपर क्या था आपके पास, कांस्टेंट था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर होगा, यहाँ पर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी प्लस जब सेकेंड फैक्टर दिस इज लीनियर, ये लीनियर है तो फिर ऊपर एक कांस्टेंट आएगा दैट इज c, इट वुड बी रिटन लाइक दिस। इसको समझेंगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन में ये आपका 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको पहले चेक करना है कि ये इनमें से कौन सी टाइप है। आप ये देखिए लीनियर फैक्टर है, रिपीटेड भी नहीं है, लीनियर फैक्टर है, रिपीटेड भी नहीं है, सो दिस इज लाइक दिस। तो अब इसमें क्या करते हैं, a अपॉन दिस कैन बी रिटन, दिस रैशनल दिस fraction, this can be written as, this rational function can be written as a upon first this factor and b upon the second factor। ठीक है, अब इसके बाद if you take the LCM, अगर आप इसका LCM लेते हैं x plus 1 x plus 2 then what would happen, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x plus 2 प्लस b के साथ ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x plus 1 and this is again it would be written as same। अभी ये देखिए ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा इधर, इट वुड बी कैंसिल, सो नो नीड टू राइट डाउन दिस। हम आगे से कभी लिखेंगे भी नहीं इसको, हम सिर्फ ये लिखेंगे x इज इक्वल टू a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस। ठीक है, नाउ वी आर टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमारे पास दो मेथड्स हैं इसको निकालने के, आई विल एक्सप्लेन यू बोथ द मेथड्स टू यू एंड फर्दर इन द कमिंग क्वेश्चंस वट एवर द मेथड यू फील ईजियर यू कैन फॉलो दैट। एक मेथड ये होता है कि आप कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर पहले x है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर कीजिए, इधर कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, इधर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a और इधर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b, एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद कांस्टेंट कंपेयर कीजिए, कांस्टेंट्स को कंपेयर करने पर इधर तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं है, 0 है तो 0, इधर 2a एंड हेयर इधर b। अब b की वैल्यू यहाँ से, या फिर इसको दो आपके पास इक्वेशंस आ गए तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और इधर 2a प्लस बी इक्वल टू 0 है। साइन चेंज करके दिस इज कैंसिल, माइनस a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू -1 आ गया, a की वैल्यू -1 आ गई। अब a की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, 1 इज इक्वल टू, इधर यू पुट हेयर और हेयर, -1, सॉरी a की वैल्यू -1 प्लस b, तो b कितना आ गया 2। तो एक मेथड तो ये है a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालने का, याद रखिए क्या आया, a -1 एंड b 2। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ जिसमें हम, दूसरा मेथड क्या है जिससे कि हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड दैट इज आई फील लिटिल बिट ईजियर देन दिस मेथड। उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1, क्योंकि -1 को रखते ये 0 हो रहा है, तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास आया है ना, ये इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू -1। जब -1 पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, -1 इंटू 1 -1, यहाँ पर -1 पुट किया, -1 प्लस 2 1, ठीक है, और यहाँ पर -1 पुट करोगे तो 0, नो नीड टू राइट। ओके, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x प्लस 2 का -2, तो पुट x इज इक्वल टू -2 हेयर, इसमें -2 पुट कर दीजिए, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 बन गया। अब यहाँ पर b -2 प्लस 1, तो ये हो गया -2 इज इक्वल टू b इंटू -1, तो b की वैल्यू 2 आ गई। हमने अभी यही निकाली थी, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2। आपको दोनों मेथड्स में से जो ईजियर लगे, जो कंफर्टेबल लगे, यू कैन अप्लाई दैट मेथड वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी जगह, ये देखिए अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन डाल दूँ तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा। नाउ आई कैन राइट दिस एज दिस, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको लिखने वाली हूँ, i इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1। a क्या आया है, -1 अपॉन एक्स प्लस 1, प्लस, क्योंकि प्लस है तो सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन हो सकता है, प्लस ओके, b कितना है 2 dx अपॉन x प्लस 2। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लॉग ऑफ x प्लस 1, क्योंकि लीनियर है ये, लीनियर में तो डायरेक्ट
लॉग लगता है ना इंटीग्रेशन में, प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस सी। अभी हम इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। दिस इज लॉग ऑफ, ये आपके पास -1 है, इसकी पावर बन जाएगा x प्लस 1 की पावर -1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 2 की पावर 2 प्लस सी। तो log a प्लस log b क्या होता है? log ab मीन्स x प्लस 2, या फिर log a माइनस log b भी कर लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिस इज माइनस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस ही रहने दीजिए। log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b। तो log a अपॉन b, दिस प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर इन दिस क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई हैव अ ट्रिक ऑल्सो टू वेरीफाई माई आंसर इज़ करेक्ट और रॉन्ग। क्या है ट्रिक? ज़रा ध्यान से देखो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अभी आप ये देखो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? x प्लस 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -1। ठीक है, आपने क्या करना है, वो -1 यहाँ मत पुट करना। ठीक है, आपका आंसर है -1, इसमें भी पुट करो और इसमें भी पुट करो। -1 प्लस 2 लॉग ऑफ, अब इसको लिखो x प्लस 1, फिर प्लस साइन लगाइए। देन अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -2। अब आप इसमें मत पुट करना, इधर भी पुट करो, इधर भी पुट करो। -2 प्लस 1 एंड लॉग ऑफ, जिसने क्रिटिकल पॉइंट नहीं पुट किया उसका लॉग लिख देंगे, प्लस सी। लेट अस सी आवर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग, जो हमने पहले किया था। -1/2 यानी सॉरी -1 अपॉन, ये सिंप्लीफाई करके आया 1, यानी -1 लॉग ऑफ x प्लस 1, फिर प्लस, दिस इज -2, दिस इज -1, तो +2 हो गया, +2 लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस सी। यही था ना हमारा, माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ ये 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस सी। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है। तो we can check our answer whether it is correct or wrong by using this simple trick. Okay? Hanji students, I want to make it this clear to you that this trick is applicable only in those questions in which the factors are linear. ये factors linear होंगे तभी ये possible है, नहीं आप ये नहीं लगा सकते। Let us start now question number 3. In this question we are to find the integral of 3x minus 1 upon x minus 1, x minus 2 and x minus 3. अब इसमें you need to check first of all the degree of the numerator is less than the degree of the denominator. Yes, okay. Secondly, we need to check in the denominator there are proper factors. Yes, in denominator there are 3 proper factors have been given. थर्ड नंबर आपको चेक करना है व्हाट इज द डिग्री ऑफ ईच फैक्टर, ये भी लीनियर है, द सेकेंड वन इज ऑल्सो लीनियर एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो लीनियर, ऑल द फैक्टर्स आर लीनियर। तो अब इनको कैसे रीअरेंज करते हैं? 3x minus 1 upon all this, we can write it as a upon first linear factor plus b upon second linear factor plus c upon third linear factor. देखो बेटा, make it clear because in the denominator there are in each case लीनियर फैक्टर्स आर देयर, इसीलिए ऊपर आपका जो न्यूमरेटर है उसमें ऑल आर कांस्टेंट्स। ठीक है, एक डिग्री कम लिखना है, तो जब नीचे लीनियर है तो एक डिग्री कम होगी तो कांस्टेंट आएगा आपके पास ऊपर। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक द एलसीएम। जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे यू विल गेट द सेम x minus 1, जैसे ये है x minus 1, x minus 2, x minus 3, वो तो आपका कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? दिस इनटू दिस, x minus 2, x minus 3, b के साथ both of these factors will be multiplied, ठीक है, एंड c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि x minus 3 तो x minus 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो you will left with x minus 1, x minus 2 को इधर मल्टीप्लाई होगा c के साथ। Now how to find out the values of a, b and c? The easiest way is कि आप सबसे पहले what is the critical point of x minus 1? क्या है? x minus 1 equal to 0 के तो x is equal to 1, तो x is equal to 1 पुट कीजिए। जैसे आपने x is equal to 1 पुट किया तो 3 minus 1 2 आ गया इधर। x is equal to 1 पुट करते ये दो जो टर्म्स हैं these will become 0 क्योंकि यहाँ पर x minus 1 is a factor। ठीक है, x minus 1 is a factor, तो ये दोनों 0 हो गए, तो यहाँ बचा
आपने 1 रखा तो 1 minus 2 is -1 and 1 minus 3 is -2, -1 into -2 is +2, +2 into a, ठीक है। तो 2 is equal to 2a, तो a की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली अब ऐसे ही आपका यहाँ पर जो क्या है x माइनस टू इक्वल टू 0 अगर देखा जाए तो इसका सोल्यूशन 2 आता है, तो आप x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो वेयर एवर दिस फैक्टर इज x माइनस 2, ये भी 0 हो जाएगा, दिस टर्म विल आल्सो बिकम 0, दिस विल आल्सो बिकम 0। आपके पास यही बचेगा x माइनस 2, यहाँ पर सॉरी 2 पुट कीजिए, यहाँ भी 2 पुट कीजिए, यू विल गेट b इज इक्वल टू -5 एंड इन द थर्ड केस इट इज x माइनस 3, तो आपने x is equal to 3 पुट करना है in this equation and you will get the value of the c that is equal to 4. So a, b and c we have got the values of all these three. तो आप यहाँ पर पुट कीजिए a is 1, b is -5 and c is 4 and put the integral sign, सब में इंटीग्रेट कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है। And you can see here in all these three cases the denominator is linear, that's why we can directly integrate it like this, log of this denominator x minus 1 minus 5 log of x minus 2 plus 4 of log x minus 3. So it's done. Now question number 5. In this question you can see it is here linear upon quadratic. लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो आप जो है नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाइए। फैक्टर्स इजीली पॉसिबल है, प्रॉपर फैक्टर्स अगर पॉसिबल है तो वी कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो लीनियर फैक्टर्स वी हैव ऑब्टेन्ड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, आफ्टर दिस similarly as we have done in the previous question 2x upon x plus 1 x plus 2 लीनियर फैक्टर्स हैं यहाँ पर। जब आपके लीनियर फैक्टर्स होते हैं डिनोमिनेटर में a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर, एलसीएम लेंगे तो a will be multiplied with this x plus 2 and b will be multiplied with this x plus 1. ओके, अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट -1 है, पुट हियर -1, x की जगह आपने -1 रखा तो a की वैल्यू आ गई, x की जगह आपने यहाँ पर -2 पुट किया तो b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू और b की वैल्यू यू विल पुट हियर एंड यू विल इंटीग्रेट इट, यहाँ पर इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे बिकॉज इन द डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर्स हैं, नो प्रॉब्लम। -2 टाइम्स log of x plus 1 plus 4 times log of x plus 2 plus 4. You can further simplify it. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, this is minus log of x plus 1 का स्क्वायर plus log of x plus 2 raised to power 4, फिर log a minus log b की प्रॉपर्टी लगाएंगे log a upon b. For the 2 steps you are to do yourself. Students, in question number 6. In question number 6, it is 1 minus x square divided by x into 1 minus 2x. You can see, students, here in the numerator, degree of numerator is 2, and after multiplication, these two factors, multiplication of denominator is also 2. It means degree of numerator is equal to degree of denominator. When it happens that the degree of the numerator and the denominator both are same, or the degree of numerator is more than degree of denominator, in that case first of all we need to divide the numerator by denominator. ठीक है, वो तो हम करेंगे करेंगे, लेकिन उससे पहले we need to check, थोड़ा सा easy बनाने के लिए, just to make our calculations easier, we want these coefficient of x square must be positive. तो हमने यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाला और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसको भी आपने कॉमन निकाला और फिर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर आया x स्क्वायर -1 और नीचे आया 2x स्क्वायर माइनस x. ओके, नाउ दिस न्यूमरेटर मींस x स्क्वायर -1 विल बी डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x, and that I have explained you why, because degree of numerator and denominator both are same, जबकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हमेशा स्मॉलर होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ नहीं था इसलिए किया। ओके, डिवीजन के बाद दिस इज योर क्वोशिएंट, हाफ 1/2 इज योर क्वोशिएंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर. नाउ हाउ टू राइट, आपको पता है कि कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर. कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इन योर जूनियर क्लासेस यू हैव ऑलरेडी डन, अगर सपोज करो 7/5 दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर होता है तो आप उसको क्या करते थे, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते थे ना. दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, 5 1s are 5 plus 2/5 means 1 plus 2/5 means this is your quotient, this is your remainder upon divisor. That's what I have written. This is 1/2, that is your quotient, plus
दिस इज योर रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर. अगेन नाउ राइट द डिवाइजर इन द फैक्टर फॉर्म, बिकॉज हमें तो फैक्टर फॉर्म में ही चाहिए होता है, क्योंकि अब देखो न्यूमरेटर अगर हम इसको एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई किया तो x-2 और ये जो एलसीएम है इसका 1/2 ये बाहर आ गया आपके पास. ठीक है. अब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हाउ मच इट इज 2 एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1. ठीक है. अब तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर स्मॉलर हो गया. वेरी गुड. एंड वन मोर थिंग कि नीचे डिनोमिनेटर में यू हैव द प्रॉपर फैक्टर्स ऑल्सो. ठीक है. दो फैक्टर्स हैं, प्रॉपर फैक्टर्स हैं आपके पास, इस वजह से नाउ इट इज इजी टू डू. अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें दो इंटीग्रेट ले लिए, इंटीग्रेंट्स आ गए हमारे पास, इंटीग्रल्स आ गए. वन इज I1 एंड दिस पार्ट इज आई हैव टेकन I2. I1 क्या है? 1/2 ऑफ 1/2 का इंटीग्रेशन. 1/2 का इंटीग्रेशन तो वेरी इजी, 1/2x प्लस c1. ओके. नाउ I2, व्हाट इज I2? दैट इज दिस वन x-2 डिवाइडेड बाय x अपॉन 2x-1 का इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर तो प्रॉपर फैक्टर है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से स्मॉलर है. देन व्हाट टू डू? राइट इट in the this form. This can be written as a upon first factor, क्योंकि ये लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट 2x-1 न्यूमरेटर में b. ठीक है. अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, we will find out the value of a and b now. अब a will be multiplied with this 2x-1, b will be multiplied with x. ठीक है. अब यहाँ पर इसका क्या है आपके पास क्रिटिकल पॉइंट 0. ठीक है. 0 पुट कीजिए, x को 0 पुट किया, वैल्यू ऑफ a की, यहाँ पर भी 0 पुट किया, यहाँ भी 0, ये तो कैंसिल ही हो गया, खत्म हो गया, ये 0 हो गया. और यहाँ पर पुट करोगे तो -a इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू 2 आ गई. दूसरा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालो, 2x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2 आया. पुट द वैल्यू ऑफ x दैट एज x इज इक्वल टू 1/2. x की वैल्यू 1/2 पुट किया तो आपके पास b की वैल्यू भी आ गई. तो आपने a और b की वैल्यू निकाल लिया. यू नीड टू पुट इट हियर एंड टेक द इंटीग्रेशन नाउ. a की वैल्यू कितनी है? 2. ठीक है. 2 अपॉन x. ओके. देन b की वैल्यू कितनी है? -3 अपॉन 2x-1. और ये देखिए थोड़ा सा ऊपर, अगर आप ये I2 के लिए निकाल रहे हैं और ये आपके पास ये x-2 था, ये जो दिस होल एक्सप्रेशन ये हमारा इसके इक्वल आया. लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, I2 निकालेंगे, बाहर 1/2 भी है, तो 1/2 आई हैव रिटन हियर. फिर a की वैल्यू लिखा, इंटीग्रेशन किया, फिर b की वैल्यू लिखा, इसका भी 2x-1 का भी इंटीग्रेशन होगा. अब देखिए दोनों एक्सप्रेशंस लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्ट लॉग हो जाएगा. 2 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस, अच्छा 3 लॉग ऑफ 2x-1. लेकिन x का कोएफिशिएंट 2 है तो उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा. डोंट फॉरगेट टू डिवाइड इट बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x. चलिए आपके पास ये I2 की वैल्यू भी आ गई, I1 की वैल्यू भी आ गई. अब I1 एंड I2 की वैल्यू यहाँ ऊपर पुट करेंगे. देखिए I1 प्लस I2 यहाँ I में पुट करके आपके पास टोटल होल इंटीग्रल जो हमें निकालना था वो आ जाएगा. तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. I1 की वैल्यू क्या है आपके पास, वो भी पुट करनी है. और I1 क्या आया था? x/2. I2 ये आपके पास आया है. और दोनों का जो कॉमन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमने यहाँ पर c लिख दिया है. दोनों को c1 और c2 को मिला के c लिख दिया है. So this is done. हाँ जी. Question number 7 now. In this question, you are to integrate x upon x-1 x square plus 1. Students, we can see here their degree of numerator is 1 while the degree of denominator is 3. तो बिल्कुल ठीक है. पहली बात तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर स्मॉलर होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, बहुत अच्छी बात है. दूसरी बात जो हमने चेक करनी है पार्शियल के लिए, वो ये चेक करनी है प्रॉपर फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में. यस, देयर आर प्रॉपर फैक्टर्स. अब तीसरी चीज जो चेक करनी है कि ये जो प्रॉपर फैक्टर्स दिए हैं क्या वो सारे लीनियर है या कोई क्वाड्रेटिक भी है. आपके पास मैक्सिमम क्वाड्रेटिक तक ही आएगा. तो यहाँ पर एक फैक्टर लीनियर है और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है. ठीक है. तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम उनका न्यूमरेटर यहाँ सेट करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर वी विल राइट डाउन इट एज इट इज इक्वल टू, रीअरेंज करेंगे इसको, रिराइट करेंगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर दैट इज लीनियर x-1 प्लस, अब जो सेकेंड फैक्टर है वो x² प्लस 1 है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसलिए ऊपर जो न्यूमरेटर में आएगा वो bx प्लस c लिखेंगे.
क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। तो बी एच प्लस सी लिखा। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो आपका ये ए मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा और बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वन है, क्योंकि वन को रखने पर ये जीरो हो रहा है, तो वन रखा आपने, वन रखा आपने तो इससे क्या आया यहाँ पर, एक्स को जीरो रखा, सॉरी वन रखा तो वन आ गया, और यहाँ पर x को वन रखेंगे तो ये पूरा टर्म इट विल बिकम जीरो, और यहाँ पर आप वन रखेंगे तो वन स्क्वायर प्लस वन टू ए हो जाएगा, तो a का वैल्यू हाफ आ गया। अब देखिए इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी जीरो यहाँ पर नहीं हो सकता। फिर कैसे करेंगे? Okay, we will compare the constants, we will compare the coefficients of x square, we can compare the coefficient of x, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमने पहले constants को compare किया on both sides, we can see here it is only x, x के साथ कोई constant नहीं लिखा, तो यहाँ पर constant है ही नहीं है on the left side, so we will write down here 0, लेकिन यहाँ पर constant है 1, when 1 will be multiplied with a, so it will be a। अच्छा, bx को if you will multiply with this expression तो constant तो आएगा नहीं, क्योंकि b के साथ x multiplied है। अब है सी को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो सी एक्स, तो आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसको तो वेरिएबल एक्स आएगा, सी इंटू माइनस वन माइनस सी आएगा, सो यू विल राइट डाउन माइनस सी, पुट द वैल्यू ऑफ ए हियर फ्रॉम हियर, एंड ए इज हाफ, व्हेन इट विल गो टू दिस साइड इट विल बी माइनस हाफ, सो सी इज आल्सो हाफ, ठीक है। इसके बाद हमने कंपेयर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब इधर तो कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं है, सो वी हैव पुट इट हिज जीरो। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा, इधर बी एक्स को व्हेन यू विल मल्टीप्लाइड विद एक्स तो बी एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर बी आ जाएगा, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए हियर, दैट इज 1/2, वी विल गेट b इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आएगी, यू आर टू पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी हियर, ए की वैल्यू 1/2, ठीक है, 1/2 पुट किया अपॉन x माइनस वन, ये इंटीग्रेशन कर दिया। फिर नेक्स्ट में आइए, b की वैल्यू भी 1/2 है, फिर x, फिर c की जगह -1/2 अपॉन दिस x स्क्वायर प्लस वन, और इसका भी इंटीग्रेशन साइन लग जाएगा। फ्रॉम हियर यू नीड टू कैलकुलेट इट, आप 1/2 इसका कॉमन आ गया, ये एलसीएम मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप, मान लीजिए दिस इज योर माइनस इज ऑल्सो वी हैव टेकन कॉमन, तो यहाँ पर x माइनस वन अपॉन टू आया, ठीक है, माइनस भी हैव टेकन कॉमन, तो ये 1/2 कॉमन ले लिया, तो x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आपको फिर दोबारा से ये आइडेंटिफाई करना है व्हाट वी हैव डन इन एक्सरसाइज 7.4। 7.4 में आई हैड एक्सप्लेन्ड यू whenever there is न्यूमरेटर में लीनियर अपॉन डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक होता था, और क्वाड्रेटिक भी कैसा क्वाड्रेटिक है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो होता था तो जो लीनियर एक्सप्रेशन होता था वी यूज्ड टू स्प्लिट दैट, तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अलग और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अलग कर देंगे। अब इसमें माइनस ये इधर -1/2 इट विल बी मल्टीप्लाइड हियर आल्सो, and this -1/2 will be multiplied with -1, so +1/2 here also. After this what to do? After this, अच्छा इधर तो आपने इंटीग्रेशन कर ही लिया इसका, 1 अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन जो है दिस इज 1/2 log x माइनस वन। चलिए अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर ये साफ क्या है आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव यू कैन सी हियर, एक्स 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो बिल्कुल है ना यहाँ पर, तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी पुट करना, हमेशा यही करते थे जब स्प्लिट करते थे तो हम इसको टी पुट कर लेते थे, वही वी हैव डन, एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने टी पुट किया तो एक्स डी एक्स डी टी बाई टू आ गया, यहाँ पर -1/2 तो था ही, एक डी टी बाई टू तो डी टी अपॉन टू, और इसको हमने टी मान लिया। और ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर लिखिए, ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, 1 अपॉन ए कितना है 1, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना है 1, तो अब ये 1 अपॉन टी डी टी जो है इसका इंटीग्रेशन लॉग टी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो दिस इज योर डन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में x अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर वाला पहली बार क्वेश्चन आया ये, इंटू एक्स प्लस टू आया ये, ठीक है।
तो आपने एज इट वाज एक्सप्लेन्ड इन द बिगनिंग कि कभी होल स्क्वायर आएगा तो आपने डायरेक्ट फैक्टर नहीं लेना होल स्क्वायर का, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन 1/1 फैक्टर की पावर इंक्रीज करेंगे, a अपॉन x माइनस 1 की पावर पहले 1 लिखा, फिर प्लस b अपॉन x माइनस 1 की पावर 2 लिखा, प्लस c अपॉन नेक्स्ट फैक्टर दैट इज x प्लस 2। देखिए यहाँ अगर देखिए ये लीनियर है इसलिए ये कांस्टेंट आया, अगर ये बेसिकली इसको देखा जाए x माइनस 1 दैट इज ऑल्सो लीनियर, ऊपर कांस्टेंट है, x प्लस 2 यहाँ पर भी ये लीनियर है, ऊपर कांस्टेंट आया। आपने अब एलसीएम लेते हुए बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर, जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखो जो हायर पावर होती है वही आती है, हाईएस्ट पावर x माइनस 1 की पावर 2 है, इधर x माइनस 1 है, तो आप किसको लेंगे, x माइनस 1 की पावर 2। ठीक है, x माइनस अगर आप इसका एलसीएम देखें तो क्या आता है आपके पास, हाँ जी, तो जब हमने इसका एलसीएम लिया x माइनस 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2, तो हाईएस्ट पावर कितना है x प्लस x माइनस 1 का पावर 2, हमने x माइनस 1 का पावर 2, क्योंकि ये देखो यही सेम x माइनस 1 है उसकी पावर 1 है, यहाँ x माइनस 1 पावर 2, तो मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर x माइनस 2 x माइनस 1 की पावर 2, और यहाँ पर बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर है दैट इज x प्लस 2। ऐसे ही लेते थे आप 10th क्लास में। अच्छा, उसके बाद जब आपने x माइनस 1 से डिवाइड किया इस पूरे को, तो आपके पास क्या आया, x माइनस 1 की पावर 1 x प्लस 2, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया a से, x माइनस 1 x प्लस 2 को a से। अच्छा, अब जब आपने x माइनस 1 की पावर 2 से डिवाइड किया इसको x माइनस 1 की पावर 2 x प्लस 2, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या x प्लस 2, तो x प्लस 2 को b से मल्टीप्लाई कर दिया इधर b से। ठीक है, फिर आपने x प्लस 2 से डिवाइड किया किसको, x माइनस 1 की पावर 2 x प्लस 2 को, तो क्या बचा x माइनस 1 की पावर 2, तो x माइनस 1 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया c से, ये लिखा है। अब ये जो डिनोमिनेटर ये पूरा कैंसिल हो गया जो इधर डिनोमिनेटर था। ठीक है, तो आपके पास ये रह गया, सिर्फ ये रह गया है ना, इधर से न्यूमरेटर इधर क्या था x, यहाँ पर ये बचा, और इधर जो ये मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बताया इट इज ओनली लेफ्ट विद अस। अब इसके बाद इधर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1, पुट करो इसमें 1, यहाँ पुट करते ये भी 0 है और ये वाला एक्सप्रेशन भी 0 है, सिर्फ ये b बचेगा आपके पास, 1 प्लस 2 3, 3b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है जी, क्रिटिकल पॉइंट इसका दोबारा 1 ही है, तो नो नीड टू रीराइट इट। अब इसका है -2, तो पुट कीजिए -2, यहाँ पर -2 पुट किया, यहाँ -2 पुट करेंगे 0, यहाँ -2 पुट करेंगे 0, सिर्फ ये बचेगा आपके पास। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू -2/9 आई। अब क्या करें, अब तो तीसरा कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, फिर कैसे करें, अभी तो अभी हमारे पास b एंड c की वैल्यू है, a की वैल्यू तो नहीं आई। तो अब हमने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कंपेयर किया, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कंपेयर करने पर यहाँ देखिए ये इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ही नहीं है, तो 0 लिखा इधर। इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x स्क्वायर, फिर उसके बाद कितना आएगा यहाँ पर प्लस 1x माइनस 2 इंटू ए, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 ए आ जाएगा, तो इधर आ गया ए। जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, नो नीड टू राइट हियर। फिर इसके बाद जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एक्स आएगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, जब c से मल्टीप्लाई करोगे तो c इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट c आएगा। Now put the value of c, that is -2/9, तो a की वैल्यू 2/9 आ गई आपके पास। ठीक है, अब a की वैल्यू 2/9, b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू -3/9, पुट इट हियर, और इंटीग्रेशन का सबका साइन कर आपने लगा दिया, इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये तो यहाँ पर लीनियर है, डायरेक्ट log ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये लीनियर नहीं है, ये देखिए x माइनस 1 रेज टू पावर 2 है, तो आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, देन इट बिकम्स x माइनस 1 रेज टू पावर -2, and what will be its integration, x minus 1 raised to power -2 plus 1 means -1 divided by -1, that's what written here, -1. -2/9, again here it is a linear factor, so direct we can integrate it log of x plus 2 plus c. This is 2/9 common, log of x minus 1 minus log of x plus 2, log a minus log b property होगी log a upon b, means 2/9 is common, log a x minus 1 and this is log b, that is x plus 2.
a upon b हो गया. This is minus 1 by 3 and this x minus 1 raised to power minus 1 becomes 1 upon x minus 1 plus c. So it is also done. Now question number 9. क्वेश्चन 9 में आपको इंटीग्रेशन करना है 3x plus 5 upon x cube minus x square minus x plus 1. Clearly you can see here degree of numerator is less than degree of denominator. Degree of denominator कितना है 3 है, degree of numerator 1 है. चलिए पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम होती है कि नीचे प्रॉपर फैक्टर्स होने चाहिए जो कि नहीं है. तो हम देखते हैं क्या are we able to find out to make proper factors here in the denominator? Yes, क्योंकि यहाँ से x square कॉमन निकल रहा है, यहाँ से -1 कॉमन निकाल लीजिए, तो x minus 1 ये एक कॉमन फैक्टर तो यही आ गया. अंदर क्या बचा x square minus 1. x square minus 1 can be split it as x minus 1 x plus 1. ठीक है, तो x plus 1 ये हो गया और x minus 1 यहाँ का, और ये it will be multiplied x minus 1 whole square हो जाएगा. अभी हमने whole square वाला क्वेश्चन किया था, है ना, तो it will be done like that. So 3x plus 5 upon x plus 1 into x minus 1 raised to power 2. It will be written as a upon, here this is x minus 1 raised to power 2 है ना, अभी we will take it x minus 1 raised to power 1 plus b upon x minus 1 raised to power 2. यानी कि इसको डायरेक्टली नहीं लिख देना आपने, इसकी पावर 2 अगर यहाँ पर है तो डायरेक्टली नहीं, we will increase the power 1 by 1, एक एक करके बढ़ाते हैं, प्लस c अपॉन दिस लास्ट फैक्टर x प्लस 1. आप चाहें तो आप इसको पहले ले सकते थे, ऐसी कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इस फैक्टर को लास्ट में लेना है. ठीक है ना. आफ्टर टेकिंग एलसीएम, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो यही वाला आता है, एलसीएम तो हमेशा यही आएगा जो यहाँ पर है. तो जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यू विल लेफ्ट x माइनस 1 x प्लस 1, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद a. फिर इसके बाद जब इससे डिवाइड करेंगे फिर दोबारा से एलसीएम को, तो दिस विल बी कैंसिल्ड, x minus 1 whole square x minus 1 whole square कैंसिल, व्हाट विल बी लेफ्ट x plus 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद b. ठीक है, उसके बाद c के जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है उससे डिवाइड करा तो ये कैंसिल हो गया, x plus 1 व्हाट इज लेफ्ट x minus 1 whole square, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद c. ओके, अब आपका यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1. इन दोनों का क्रिटिकल पॉइंट आप देखिए 1 है, तो आपने पहले 1 पुट किया. जब आपने 1 पुट किया यहाँ पर, तो जहाँ भी x minus 1 ये भी 0 हो गया और यहाँ पर x minus 1 है ये भी 0 हो गया, सिर्फ आपके पास ये वाली टर्म बचेगी. तो आपने जब x को 1 पुट किया है तो ये आ गया 2b, और यहाँ पर जब 1 पुट किया तो यहाँ पर आया आपके पास 3 plus 5 8, तो 2b is equal to 8 आया, तो b की वैल्यू 4 आ गई. चलिए इसका तो सेम है क्रिटिकल पॉइंट x minus 1 का, नो नीड टू डू. नेक्स्ट है आपके पास x plus 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट है -1. तो आपने -1 यहाँ पुट किया, यहाँ पर 2 आ गया. ठीक है, यहाँ पर आपने अगर आपने -1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाता है, तो ये दिस टर्म इज वैनिश्ड, दिस इज आल्सो वैनिश्ड. x plus 1 में यहाँ पर आपने x की जगह -1 किया, तो दिस इज आल्सो फिनिश्ड. सो वी आर लेफ्ट विद हियर x की जगह -1 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4c. 4c इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा आपके पास. तो b and c की वैल्यू हो गया. अब तीसरा क्रिटिकल पॉइंट, तो वी डोंट हैव एनी अदर क्रिटिकल पॉइंट, so what to do, we can compare x square, coefficient of x square, we can compare constants, or we can compare the coefficient of x also. So I have taken here, वो अपनी आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, सब to you. So I have taken here coefficient of x square, I have compared coefficient of x square. Here I can see there is no coefficient of x, so 0. Here if you multiply it will become x square minus 1. X square minus 1 will be multiplied with a, तो a का x square coefficient हो गया a. Here when you can see here is no coefficient of x, but when we multiply this c with this x minus 1 whole square, after opening it this square you get cx square, so x square का coefficient c हो जाएगा. Now put the value of c here, that is -1/2, or sorry +1/2 c की वैल्यू, तो a की वैल्यू -1/2 आ जाएगा. अब आपने a की वैल्यू क्या आई है -1/2, b की वैल्यू क्या आई है 4, and c की वैल्यू क्या आई है 1/2. You are putting here and you will find out the integration of this yourself. Now question number 10, इसमें है 2x minus 3 upon x square minus 1 2x plus 3. देखो मैंने ना x square minus 1 को स्प्लिट कर लिया, कैसे x minus 1 x plus 1, ताकि सारे लीनियर फैक्टर्स आ जाएं. इट बिकम्स इजी
to solve it with the linear factors. That's why. ठीक है, तो if it is possible then you can convert it into, otherwise तो हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पर इसको अगर हम क्वाड्रेटिक लेते तो ऊपर ax plus b लीनियर लेना पड़ता, तो मैंने इसको कन्वर्ट ही कर लिया लीनियर फैक्टर्स में, लेकिन पॉसिबल था तभी, अगर नहीं पॉसिबल है यहाँ पर +1 होता, एक्स स्क्वायर +1 होता, तब तो आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, तब तो आपको फिर क्वाड्रेटिक के हिसाब से करना पड़ता। anyhow in this question it was possible, so I have done. So a upon first linear factor plus b upon second linear factor and c upon third linear factor, and then simplify it yourself. It is very easy to do, you can do it yourself. हाँ जी, this is 11th question. इस क्वेश्चन में भी आप देखिए यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये जो x स्क्वायर माइनस 4 है इसके भी तो फैक्टर्स बन सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सो दिस इज x माइनस 2 x प्लस 2। लीनियर फैक्टर्स आ गए, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स के साथ डील करना इजी है, दैट्स व्हाई जब भी आपको देखे कि अगर इफ इट इज पॉसिबल टू गेट द लीनियर फैक्टर्स टू कन्वर्ट दैट क्वाड्रेटिक इनटू द लीनियर फैक्टर्स, देन डू दैट। तो हमने इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करके a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर देन प्लस c अपॉन नेक्स्ट लीनियर फैक्टर, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया। यू कैन डू इट योरसेल्फ, so this is also very easy question, try it yourself.